अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो अपने बल पे का वेबिनार है, यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 57। और आज के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत लर्निड स्पीकर्स के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है समर ब्रेक ब्लूप्रिंट, हाउ टू रिटर्न बेटर, नॉट जस्ट रेस्टेड, making your summer break count beyond just relaxation. Summer break is often seen as a long waited pause from studies, exams, and daily routines. Most students use it for rest, travel, entertainment, or simply passing time. While relaxation is important, this period also holds a hidden opportunity, one that can shape your skills, mindset, and direction for the rest of the year. The difference between returning the same and returning better is not luck, it's intention. और हमारे पहले स्पीकर हैं मोहम्मद रफीक ताहिर साहब। सर, वेलकम टू अवर वेबिनार। मोहम्मद रफीक ताहिर साहब is advisor National Rahmatul Alameen wa Khatam Nabiyyin Authority, Ministry of Federal Education and Professional Training, Islamabad. Rafik Tahir Saab is a distinguished educationist and public sector administrator with extensive experience in educational policy, curriculum development, and institutional leadership in Pakistan. He has served in key positions within Ministry of Federal Education and Professional Training, including advisor to the National Rahmatul Alameen wa Khatam Nabiyyin Authority and joint education advisor, contributing significantly to national education reforms such as the single national curriculum. He has served as a senior advisor at the Center of Excellence, Allama Iqbal Open University. He is also the executive director of Lahore Leeds University and TV Today, and head of Pakistan chapter of the Toha Qureshi Foundation UK. और मुझे एजाज हासिल है कि मैं इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ कॉमर्स कॉलेज में बैक इन 1990। सर, वेलकम टू अवर वेबिनार। और आज के सेकंड लर्नड स्पीकर हमारे साथ हैं शाहिद अहमद साहब, एजुकेशन स्ट्रेटेजिस्ट एंड एकेडमिक लीडर। शाहिद साहब इज अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक कॉर्पोरेट लीडर एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल विद ओवर 3 decades of experience spanning industry and higher education, holding a BS in engineering and an MBA from University of California, Berkeley, USA. He has served in senior leadership roles including Director General and Executive Vice President Marketing at PTCL and Regional Manager from a multinational US European company across South Asia. Following a successful corporate career, he joined Bahria University as a senior associate professor, where he founded and led the Leadership Development Center and later established the Directorate of Marketing, renowned for bridging the gap between academia and industry. Shahid Atsab is passionate about enhancing the relevance, professionalism, and market orientation of higher education. His expertise includes university development, learning, leadership training, personal branding, marketing strategy, and student development. And he continues to mentor, teach, and contribute to educational excellence across Pakistan. Shahid Atsab, thank you so much for joining us. Welcome to our webinar. Thank you for a rather longish introduction. और आज के जो तीसरे हमारे स्पीकर हैं अरशद महमूद आकिफ साहब, जो हमेशा मैं कहता हूं कि जी जो अपने बल पे जिस फोरम पे आज हम वेबिनार कर रहे हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। ही इज द फाउंडर ऑफ अपने बल पे एज वेल एज इसके डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अरशद महमूद आकिफ, एंटरप्रेन्योर, एचआरडी प्रोफेशनल, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड स्पीकर। अरशद आकिफ इज ग्लोबली एक्सपोज्ड human resource development professional, management consultant, trainer, and speaker with over 23 years of diversified experience in the corporate development, public, and international sectors. As CEO of ASK Development, an ISO certified HR consulting and HR outsourcing organization, he has led large-scale workforce management, organizational development, leadership, and capacity building initiatives across Pakistan. He has trained and mentored thousands of professionals from multinational companies, banks, NGOs, universities, and public sector organizations, and has contributed to international HR standards initiatives, including ISO TC 260 working groups on recruitment and diversity and inclusion. Known for his highly engaging and practical learning approach, he regularly speaks at conferences, executive forums, and webinars on HRM, management, leadership, workplace transformation, employability, and organizational productivity. Akif Saab has remained actively engaged in CSR and national building initiatives through free webinars, youth development programs, and employability skills enhancement activities. He also contributes towards social development by supporting organizations and community initiatives on a pro bono basis. Ashad bhai, welcome to our today's webinar. आइए जी टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक कैसे रिटर्न हो, और याद रखिएगा इस टॉपिक का पर्पस ये नहीं है हमारा गोल इज टू मेक समर स्ट्रेसफुल। वी रियली वांट योर समर गोल्स इज टू मेक इट मीनिंगफुल। और मैं दावत दूंगा रफीक ताहिर साहब को। सर, टॉपिक आज का आपके सामने है, ऑडियंस हमारी यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, इस टॉपिक के बारे में प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको बहुत शुक्रिया जी कि आपने मौका दिया हमें यूथ से मुखातब होने का इस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के जरिए। मैं ये समझता हूँ कि ये समर ब्रेक जो ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मेरी 4 हैसियतों में यहाँ मैं बैठा हूँ जी। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था आज से 40 साल पहले, और फिर मैं अपने करियर का मैंने आगाज़ किया, उसमें मेरा एक रोल था। फिर मैं उस कैरियर में बढ़ते बढ़ते एक पॉलिसी मेकिंग लेवल पे गया, वो एक मेरा रोल था। और एक फादर भी मैं हूँ, और मेरे बच्चे हैं, मैं उनको भी मैंने उनके कैरियर प्लान करके मुख्तलिफ। तो इन सब में समर ब्रेक हर दफ़ा थी। आज मैं अगर अपने दौर की समर ब्रेक का बात जिक्र करूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आज की जिस जनरेशन से मैं मुखातिब हूँ, उनकी समर ब्रेक का कॉन्सेप्ट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। समर ब्रेक जो है वो हमें हेल्प करती है इन 10 एरियाज में।
अगर हम इसको इस तरह से प्लान करके करें, इन एरियाज को सामने रखें, तो जब हम समर ब्रेक अपनी ख़त्म करके वापस अपनी जगह पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि देयर इज सम चेंज, जो कि मेरी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में भी और मेरे अपने मेरे अपने एटीट्यूड में भी, मेरे स्किल्स में, बहुत सी चीज़ों में मेरी तब्दीली आप बंदा नोट करता है। मैं समझता हूँ कि मैं ये दो तीन जुमले अगर पढ़ लूँ जो मैंने अपने सामने लिखे थे कि समर Do you वेकेशन इज enjoy नॉट अ watching ब्रेक movies? from education, it is a break from classroom learning. It's a break from classroom. Learning should continue. समर ब्रेक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि एजुकेशन से ब्रेक है, बल्कि ये क्लासरूम से हम कुछ अरसे के लिए बाहर रहते हैं, उस स्ट्रक्चर्ड माहौल से बाहर रहते हैं, लेकिन लर्निंग फिर भी जारी रहना चाहिए। और सक्सेसफुल समर इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच एंटरटेनमेंट यू कंज्यूम, ये एक और एक्सट्रीम है, बट बाय हाउ मच ग्रोथ यू अचीव्ड। तो ये एक दो तीन इस तरह की चीजें हैं जिनको अगर आप समझें, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस ग्रोथ को आपने मेजर करना है और साथ एंटरटेनमेंट या जिसको आप कहते हैं कि रेस्ट मोड में कुछ अरसा रहना है, तो इन चीजों को मैं यंगस्टर से जरूर शेयर करूंगा। नंबर वन, क्या हमारे बच्चे को जो ग्रेजुएट बनता है उसे क्लैरिटी होती है पहले दिन से अपने कैरियर की कि मैंने किस मंजिल पे पहुंचना है? नो। तो मैं समझता हूँ कि समर ब्रेक को इस मकसद के लिए यूज करना चाहिए कि कैरियर क्लैरिटी हो, कि हम बहुत लेट हो जाएं आखिरी सेमेस्टर में जाके हम देखें कि हमने कहाँ जाना है। तो इसके लिए तीन छोटी छोटी पॉइंट है मेरे जहन में। वेयर डू आई वांट टू बी आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरा क्या हदफ है मैं ग्रेजुएशन के ये आपसे, यानी समर ब्रेक के दौरान अगर ये क्वेश्चन हम अपने आप से करें, और खासकर वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी नया नया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया या लेने वाले हैं, वट कैरियर आर अवेलेबल इन माई फील्ड, ये हमें पहले दिन से टिप्स पे पता हो कि ये दो तीन चार चीजें मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। और वट स्किल डू एम्प्लॉयर डिमांड, क्या इस दौर में क्या रिक्वायरमेंट है। मैं खुद बहुत सी जगहों पे इंटरव्यू करता हूँ, तो हम जो बुनियादी चीजें पूछते हैं वो भी उन्हें नहीं पता होता, बस सर मैंने बीएस किया, मैंने एमएस कर ली थी फलां सब्जेक्ट में, आगे क्या उन्होंने नहीं। नंबर टू, मैं ये समझता हूँ और मेरा ख्याल ये है कि ये जो हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सारा कुछ एमएस बीएस जो भी करते हैं, डू नॉट जस्ट स्टडी फॉर अ डिग्री, ये तालिब इल्म को अपने साथ क्लियर होना चाहिए, प्रिपेयर फॉर ए डेस्टिनेशन। तो इस पहले पॉइंट में एक ही ये हमारा आप कह सकते हैं कि की टेक अवे है कि हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मैंने कहाँ पहुंचना है, मेरी मंजिल क्या है। नंबर टू, प्रैक्टिकल स्किल, इसकी लर्निंग की कितनी अहमियत है। क्या हमें कैरियर अपनी डेस्टिनेशन तो क्लियर है, लेकिन हम इन समर वेकेशन में इस बात पे तवज्जो देंगे कि मैंने कोई प्रैक्टिकल स्किल, आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। तो क्या समर वेकेशन में आपने कोई प्लान किया कि किसी एक स्किल को आप टच करेंगे और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी? तीसरी बात, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये मैं खुद कई दफा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जब हमने इंटरव्यू किया, बहुत अच्छे कैरियर, ए ग्रेड, बी ए ग्रेड, A1 ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो वो अपनी बात को, उस अपने इंटेलिजेंट होने को वो हमें प्रूव नहीं कर सके और कन्वे नहीं कर सके। तो समर ब्रेक इस मकसद के लिए भी शायद हमारे लिए एक अहम पॉइंट हो सकता है कि हम ड्यूरिंग समर हम कुछ एक्टिविटी को ज्वाइन करें, बड़ा लाइट, वीक में 1 या 2 दिन भी बेशक हो, खा वो पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस हो या ग्रुप डिस्कशन हो और प्रेजेंटेशन हो, प्रोफेशनल राइटिंग हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, कोई एक चीज को हम सिलेक्ट करें। देयर आर सो मेनी अदर, मैंने वैसे 2-3 लिस्ट की हैं। तो कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग जो इनहेरिटेड होता है, इसको पैदा करना जरूरी होता है और इट इज डेवलप थ्रू द प्रैक्टिस। चौथी बात, डेवलप द रीडिंग हैबिट। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें इस समर वेकेशन में तय करना चाहिए। इसमें रीडिंग किसके बारे में कर सकते हैं आप? लीडरशिप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बला बला, बहुत सारे, ये अपनी चॉइस का है। लेकिन याद रखिए, मैं सब अपने स्टूडेंट से कहूंगा, उसका रेलेवेंस जो आपने पहले हमने बात की थी, अपनी आपकी डेस्टिनेशन जो आपने तय की है उसके साथ कहीं ना कहीं वो मिसमैच ना हो, मैच जरूर हो, किसी दूसरी तरफ की तरफ जाने वाली ना हो। नेक्स्ट मेरे ख्याल में है कि फिर बिल्ड अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, अब मुझे जो भी, मेरे इकोनॉमिक्स में मेरा कैरियर है सारा, BSMS सब कुछ, लेकिन मैंने एजुकेशन को जब ज्वाइन किया तो आज अब मेरा सारा कैरियर अगर आप कभी भी खोलें कहीं तो आपको लगेगा कि एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन, और उसके अंदर खाओ पॉलिसी मेकर हो या करिकुलम डेवलपमेंट, नेशनल करिकुलम डेवलप करने का मुझे चांस मिला, तो वो आप अपनी बिल्ड अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, इसका एक आपको बहुत जरूरी है। फिर मैं कैरेक्टर की बात करूंगा, कैरेक्टर एंड वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास CSS के ऑफिसर आते हैं हमारे सेक्रेटेरिएट में, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज, उनकी बाकी सब चीजें वो बड़ी करीम कहलाते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और वैल्यूज है उन पे बहुत देखना पड़ता है कि उसको किस तरह, क्योंकि उनके बिल्ट इन नहीं होती उस पूरे प्रोसेस जिससे वो गुजर के होते हैं। तो आज अब जो हमारा बच्चा है, जो आज हमारी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, होने वाला है या हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट नहीं चाहिए इस पाकिस्तान को, इसके लिए कुछ ऐसे लोग जो ऑनेस्ट प्रोफेशनल भी हों, जो रिस्पॉन्सिबल
सिटीजन भी हों, एथिकल लीडर्स भी हों, वगैरह वगैरह। वॉलंटियर वर्क में उनको, यानी अब ये काम करने के लिए समर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ वॉलंटियर वर्क भी करें, कुछ फैमिलीज को हेल्प करें, कम्युनिटी प्रोजेक्ट करें और मेंटोरिंग करें आप यंगस्टर की। तो ये वो चीजें हैं जो आप ड्यूरिंग द समर वेकेशन एज ए ग्रेजुएट आप कर सकते हैं। मैं एक दो और पॉइंट पे बात करके खत्म करता हूँ। और एक और चीज, इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। सर सादा सी बात है, अगर आप तंदुरुस्त नहीं है, आप सेहतमंद नहीं है, आप इरेगुलर हैं अपनी स्लीप में, और आप इरेगुलर हैं अपने बाकी मामलात में, कि रात को 1 बजे सो गए और सुबह पता चला कि आप 11 बजे उठ रहे हैं, और ये क्यों जी? वो समर वेकेशन है। समर वेकेशन इसका नाम नहीं है, बल्कि एक प्लानर आपका होना चाहिए कि आपके सारे टाइमिंग नॉट वेरी मैकेनिकल कि बिल्कुल इससे आगे पीछे नहीं, लेकिन कुछ जिंदगी का सलीका या शऊर उसमें आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। जिस आदमी की बहुत अच्छी स्लीप होती है वो बहुत सुकून, और ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, जो बिल्कुल उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपनी हेल्थ पे तवज्जो देते हैं, वो बहुत जबरदस्त लोग होते हैं। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर स्लीप और इसी तरह स्क्रीन टाइम को कम करना, इस पे भी तवज्जो दें। अगर आप पहले 90-80% करते तो अब आपने कहा 30% हमने कम करनी है, 50 पे आना है। तो ये चीजें शायद समर वेकेशन में इस तरह की चीजें आपकी हैबिट्स डेवलप हो सकती हैं। हेल्दी बॉडी, स्पोर्ट्स, अ प्रोडक्टिव माइंड, ये बात कही जाती है। और बिल्ड द मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड द नेटवर्क, ये है समर वेकेशन के एक और चांस जो आप अपनी रूटीन लाइफ में या अपनी रूटीन स्टडीज में शायद आप इस पे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। तो ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप और नेटवर्किंग जो है, ये भी समर वेकेशन में हो सकती है। देखिए कौन से लोग आपके साथ और किस तरीके से अटैच हो सकते हैं, और इसके जराए क्या हैं। सेमिनार अटेंड करें अगर मौका मिले, और इसी तरह पार्टिसिपेट इन द वेबिनार्स, कनेक्ट विद द जो आपके पुराने वो है, एंगेज विद द मेंटोर्स एक्सेट्रा। और मैं ये समझता हूँ कि योर फ्यूचर कैन बी शेप्ड बाय पीपल यू लर्न फ्रॉम टुडे। जिनसे आप आज के दौर में लर्न करते हैं वो आपके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। और फिर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ये बड़ा अच्छा काम है। आप कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं सिर्फ एक जगह जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक मस्जिद के साथ मैंने अपने आप को अटैच किया, और मैं हफ्ते में 2-3 घंटे उनको देता हूँ। तो वी हैव ए वंडरफुल एक्टिविटी इन द मास्क। उसको हमने मास्क स्पिरिट चेंज कर दिया कि 5 वक्त की नमाज के बाद ताला या वहाँ इस तरह की हमारी जो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं वो नहीं हो रही, बल्कि उसी मस्जिद को हमने एक बेहतरीन आप लोगों के लिए प्लेस बना दी, जहाँ डिस्कशन भी होती है, जहाँ गुफ्तगू भी होती है, जहाँ दुनियावी टॉपिक भी डिस्कस होते हैं। तो आप अटैच करें, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। और आप इसी तरीके से, हो सकता है आप में से जो बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज बच्चे बैठे हैं, जो कि इनको कोई सपोर्ट नहीं है, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई चीज नहीं, यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंट का आजकल बड़ा इशू, उस इनिशिएटिव में आप क्या कर सकते हैं, वो आप अपने इर्द गिर्द देखें ऐसी। और फिर कम्युनिटी सर्विस वगैरह। तो मैं कहता हूँ कि ये जो सर्विसेज होती हैं, ये डेवलप्स लीडरशिप, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे इंसान के अंदर आती है। और ये एक समर वेकेशन की एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। और मैं कहता हूँ लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एक डिजाइन करें कि आज जो मैं हूं, जब मैं समर वेकेशन शुरू हो रही थी उस वक्त मेरी शख्सियत थी, अब मैं जब 3 महीने या 2 महीने या 2.5 महीने वापस करके जाऊंगा तो मेरी शख्सियत में एक चेंज शख्सियत होगी। मेरे दोस्त भी देखेंगे कि मेरी कुछ रूटीन्स भी ठीक हो गई हैं, मेरी कुछ और चीजें, मैं कोई मतलब मुख्तलिफ जो 8-9 पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया वो आपके, और आप देखें कि कौन सी आदत आपने तर्क की हैं, कौन सी आपने नई अडॉप्ट की हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का इंसान बनूं, और वो आपने समर वेकेशन में कुछ प्रैक्टिसेस की हैं। तो कंक्लूजन ये है कि बाय द एंड ऑफ द वेकेशन, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे शुड लर्न, दे कम बैक, दे रिटर्न विद, देखें कि क्या उनकी लाइफ में अब मोर नॉलेजेबल वो हो गए हैं, पहले से अपनी रीडिंग हैबिट बेहतर हो गई है, नई चीजें उन्होंने जानी है, उन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है, कुछ और चीजों को देखा है, तो क्या उनके अंदर कोई तब्दीली आई है। अब अपने आप को फील करते हैं कि आप वो पहले से ज्यादा स्किल्ड है, आपने एक नई स्किल उनकी लाइफ में दाखिल हो गई है, नई चीज सीखी है, पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो चुके हैं, मोर कॉन्फिडेंट हैं, मोर पर्पसफुल लाइफ उनकी नजर आती है। तो समर शुड नॉट सिंपली चेंज योर स्केड्यूल, इट शुड चेंज योर ट्रेजेक्टरी। ये अगर आपकी तब्दीली है तो आप समझते हैं कि आपकी समर वेकेशन, लेकिन इन सब के लिए आपको आगाज के अंदर एक प्लानिंग चार्ट बनाना होगा, अपनी प्रायोरिटीज बनाना होंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि आप अपनी शख्सियत को डिफरेंट, थैंक यू सो मच, मैंने शायद बहुत थोड़ा ज्यादा शुक्रिया। ले लिया है लेकिन। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा, और इसलिए कि ऑडियंस हमारी सुनना चाहेगी आपके। अस्सलाम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग। इसलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, इसलिए कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। इसलिए उन्होंने बात, टॉपिक ये है कि हाउ डू यू रिटर्न बेटर एंड नॉट जस्ट रेस्टेड। पहली बात तो है कि आई विश व्हेन आई वाज योर एज इस किस्म के मौके होते तो आई वुड हैव बीन मच बेटर पर्सन टुडे देन आई एम, लेकिन उस जमाने में नहीं थी। दूसरी बात ये कि जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने देखा कि दुनिया में जो अच्छी कौमें हैं और जिनके यूथ बड़े सक्सेसफुल हैं वो क्या करते हैं, आखिर वो भी तो कुछ करते हैं, उनकी भी वेकेशंस होती हैं। तो मैंने जो देखा तो उसमें 3 बड़ी चीजों के ऊपर उन्होंने जोर दिया हुआ था, एक लर्निंग, एक डेवलपमेंट
एंड तीसरी ऑब्वियसली हैविंग फन और हैविंग रेस्ट और डूइंग डिफरेंट थिंग्स। इस समर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू लर्न एंड इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ताकि जब आप समर के बाद वापस आए, यू शुड बी एबल टू आंसर द फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट डिड आई लर्न, व्हाट डिड आई डू, डिड आई हेल्प समबडी, डिड आई मेक समथिंग, डिड आई कंट्रीब्यूट टू अ कॉज, डिड आई क्रिएट एनीथिंग, डिड आई हैव फन, डिड आई मेक मोर फ्रेंड्स, डिड आई इंप्रूव माय नेटवर्क। बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है? प्रोफेशनल लर्निंग जो है, बहुत सारी आजकल इंटर्नशिप्स होती हैं, प्रोडक्शन कंपनीज में होती हैं, एग्रीकल्चर कंपनीज में होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में इंटर्नशिप होती है, छोटी छोटी जॉब्स होती है, वो करे आदमी तो वो चीजें होती है। इसी में ये तो हो गई लर्निंग। फिर दुनिया में आजकल सिर्फ लर्निंग से गुजारा नहीं होता, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और वो उसी वक्त होता है जब आदमी वहां जाके, एज यू से, कि गेट योर हैंड्स डर्टी। आप जाएं किसी इंडस्ट्रियल जोन में जाएं, आप किसी पोर्ट पे जाके देखें, आप किसी चिकन फार्म आज में जाके देखें कैसे ये चीजें होती है, किसी एग्रीकल्चर फार्म में जहां ग्रीन हाउस होते हैं वहां जाके देखें कि आजकल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लोग नई नई क्या चीजें सीख रहे हैं। दिस आई वुड कॉल ए पार्ट ऑफ लर्निंग। आई विल गो टू द सेकंड पार्ट which I call development. Development के I'm being very short about these things, लेकिन बात तो लंबी हो सकती है कि डेवलपमेंट के दो फेजेस हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स है, एक हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल जैसे हमने बात की कि हाउ डू आई स्पीक बेटर, हाउ डू आई मेक प्रेजेंटेशन बेटर, बड़ी पुरानी किताब थी, हाउ डू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक मोर फ्रेंड्स, कन्विंस कैसे कर सकते हो। इसलिए कि आजकल के जमाने में जब टेक्नोलॉजी बहुत आएगी तो ये सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत बढ़ती जाएगी। हाउ डू यू यूज दोस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू डू व्हाट यू वांट टू गेट डन। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत जगह पे वर्कशॉप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होती है, प्राइवेटली लोग करते हैं, जैसे ये आज हो रहा है अपने बलबूते पर। इस तरह की और भी कुछ प्लेटफॉर्म में लोग चीजें करते हैं। हार्ड स्किल्स जो है, आजकल जाहिर है हर जगह एआई की बात होती है, डिजिटल स्किल्स की बात होती है, ई कॉमर्स की बात होती है, वीडियोस की बात होती है। जैसे आजकल ड्रामे और फिल्में एक्टरों के साथ नहीं बन रही हैं, टेक्नोलॉजी से बन रही। ये सब चीजें आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्वायर करना शुरू करें तो कल को आप लोग को रास्ता मिल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आप में से बात पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ ईयर में होंगे, मे बी इट्स टू सून फॉर यू टू रियलाइज कि मैं क्या करूंगा, लेकिन इतनी चीजें आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि मेरे इंटरेस्ट की, मेरे शौक की, मेरे मतलब की, जो मैं करना चाहता हूं उससे क्या चीजें मिलती हैं। ये आई वुड कॉल इट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट। और भी बहुत सारी चीजें होती है आजकल, जैसे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड पीपल। सो गो टू दिस थिंग, अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ताकि ये चीजें कर सकें। और इसमें जाहिर है बिल्कुल ना भूलें कि द समर टाइम इज अ टाइम टू हैव फन विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। घूमना फिरना करें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, लेक्स में जाएं, माउंटेन में जाएं, ट्रेकिंग करें, हाइकिंग करें, हिस्टोरिकल साइट्स में जाएं, लर्न म्यूजिक, लर्न पेंटिंग, लर्न सिंगिंग, वॉच मूवीज, वॉच ड्रामास। पिछले दिनों इस्लामाबाद में मैंने एक बड़ी मशहूर फिल्म आई हुई है माइकल, देखी मैंने, दोबारा देखने का मेरा मूड है। इट वाज फन टू वॉच इट। फिर मैंने ड्रामा देखा जिसमें आपके सारे बच्चे काम कर रहे थे, आपके लिटरली आपकी, इट वाज वेरी गुड ड्रामा हुआ था। तो ये सब चीजें करने की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फन सो दैट व्हेन यू कम बैक यू आर रिजुविनेटेड टू गेट बैक इनटू स्टडीज, सीरियस स्टडीज। तभी आदमी कर सकता है जब आदमी रेस्ट करके फन करके आए। बहुत जरूरी चीजें रफीक साहब ने दो और बातें कही, कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए जरूर। एक आखिरी सिर्फ बात मैं करूंगा कि आजकल बाहर की दुनिया में एक चीज बड़ी पॉपुलर होती जाती है, इसको कहते हैं साइड हसल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, और वीकेंड के ऊपर वो छोटे छोटे अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आई नो पीपल हु आर गुड, वेरी गुड कंसल्टेंट्स, एंड द वीकेंड दे डू रियल एस्टेट वर्क, घर बेचते हैं, घर खरीदते हैं, घर रेंट देते हैं। इसलिए कि तो ये भी होता जा रहा है कि नौकरियों को इस तरह परमानेंसी नहीं है जॉब्स की जैसे पहले थी। और अक्सर ये भी हो रहा है, ये जो साइड हसल लोग शुरू कर रहे हैं उसमें समटाइम इट बिकम्स सो बिग एंड सो प्रॉफिटेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल कि पीपल से यार मैं मेन काम छोड़ के ये करता हूँ। तो दीज आर दी वेरी फ्यू थिंग्स आई वांट टू से, बिकॉज़ द टाइम इज शॉर्ट। अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करें, जिम में जाएं, एक्सरसाइज करें, ये सब। और अच्छी बात यह है कि ये सब करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कहाँ कहाँ ये चीज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट में, नेफटेक वाले करते हैं, NABTTC वाले करते हैं, नेटसॉल्व वालों ने भी कोई चीज शुरू की है, प्राइम मिनिस्टर का एक वो है इनिशिएटिव, एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है, जाके ढूंढे। बेहताशा आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसमें अपने मतलब की चीज निकालें, करें। हो सकता है इस साल आप एक चीज करेंगे, अगले साल दूसरी चीज करेंगे। सो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू विल नो कि यार मुझे ये करना है। एंड आई विल स्टॉप देयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अर्शद भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ऑलरेडी हमने काफी इस पर डेफिनेशन पे आ गए। व्हाई समर ब्रेक इज अ क्रिटिकल ग्रोथ विंडो, नॉट जस्ट अ फ्री टाइम। तो आप अपने इस टॉपिक के बारे में भी प्लीज अपने राय का इजहार करें, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्यों ये क्रिटिकल ग्रोथ विंडो है। Yes, this is a critical window because the time has been changed.
market has been changed, economic condition of families have been changed. आज से जैसे अभी मेरे फाजिल दोस्तों ने बात की कि 20 साल 30 साल पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ इतने इकोनॉमिक प्रेशर नहीं थे, ना ही इतनी मसाइल थे जो आज हैं। मसलन आजकल ना तो हमारी ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, तब तो 4 साल की है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि इस घर में 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर्स क्या होंगे। और इसके अलावा जो प्राइस हाइक है ये आज से इवन डेकेड पहले ये नहीं थी। तो एक तो ये है कि आज का नौजवान जो यूनिवर्सिटी में है उसे ये हकीकत समझनी होगी कि नाउ ही or she is no more a child, he or she is a grown up adult and they can contribute to the family income as well. तो ये समर ब्रेक हमें उसमें मदद कर सकती है। सेकंड, कंपटीशन हैज गॉन वेरी हाई। पहले इतने मसाइल नहीं थे और आपको कंपेटिटिव रहने के लिए अपने स्किल, नॉलेज और सर्टिफिकेशन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा और समर ब्रेक इज अ गुड टाइम फॉर टू डू इट। थर्ड पॉइंट इज, पहले हम अपनी शहर में जॉब्स करते थे, बड़ी जोर लगा के दूसरे शहर तक चले जाते थे या सूबे तक चले जाते थे, बट नाउ एवरी ग्रेजुएट हैज अ ग्लोबल मार्केट टू वर्क। और आपको सिर्फ अपनी कम्युनिटी या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके एतबार से ग्रो नहीं करना। यू हैव टू हैव प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ग्लोबल मार्केट। जरूरी नहीं कि आप मुल्क से बाहर जाएं, आप यहाँ बैठ के भी ऑनलाइन इंटरनेशनल असाइनमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया आपके लिए काम की। आप ग्लोबल विलेज बन गया है तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और ये काम आप अपने सेमेस्टर के ड्यूरिंग, जहाँ पे असाइनमेंट, क्विजेज, एग्जाम्स और बहुत कुछ एक्टिविटीज चल रही होती है, मुमकिन नहीं होता। तो यू कैन यूज दिस विंडो टू फर्दर ग्रो योरसेल्फ। सर रफीक साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग समर वेकेशन? आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को डिफाइन किया है, बट हम इसलिए के टॉपिक सब टॉपिक्स और हमारी जो ज्यादातर ऑडियंस है यूथ है, यंग लोग हैं, तो एट टाइम्स स्पेसिफाई करके समझाना जरूरी होता है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो समर वेकेशन में स्टूडेंट्स जनरली करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स, या एटलीस्ट मैंने खुद जिन जिन शो में रहा हूँ मैंने देखा है कि वो समर वेकेशन को एक पहले दिन से एक लेयर किस्म की चीज़ उनके जहन में आ जाती है कि बस जी आप हर चीज़ से फारिग हैं, एंजॉय करो। यानी समर वेकेशन होती है तो उनके जहन में एक चीज़, नो डाउट एंजॉयमेंट इज अ वन पार्ट, लेकिन बाकी तो उन्होंने पहले दिन से, और बात दफा ये होता है कि पहले दिन से कोई प्लान नहीं है, अचानक समर वेकेशन के आखिरी 2 या 3 वीक रह गए और उन्होंने एकदम धड़ाधड़, नहीं मैंने तो ये कंप्यूटर का जो 2 हफ्ते का कोर्स है मैंने ये भी करना है, मैंने तो सेमिनार फलां जगह पे हो रहा है, मैंने तो इतना अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि वो कोई एक चीज पे फोकस करके उसकी वो स्किल या उसकी लर्निंग उनको प्रॉपर नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज, और या फिर हुआ कि बस ही आप वादी नीलम से आए हैं तो आज हम हमजा की तरफ जा रहे हैं, हमजा से आए हैं तो आज फैमिली के साथ ये हो रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन सोसाइटी में रियलिटी, आप सबके आप और मैं सारे इसी मुआशरे में रहते हैं, ये होता है। तो ये जो इतना अच्छी एक आपने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की, तो देयर इज सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स के प्लीज यार, आप पहले दिन जब छुट्टियां हुई हैं तो 2 दिन तो कुछ नहीं करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन तीसरे दिन आपके जहन में अगर ये भी पॉइंट रह गए हैं जो इस सेमिनार के थ्रू आपको, तो लेट्स मेक अ प्लान। और तो यानी समर वेकेशन को प्लानिंग के बगैर ना गुजारें। और बड़ी मिस्टेक यही है कि हम प्लानिंग या तो करते नहीं है, अगर करते हैं तो बेस्ट लास्ट टेल पे जाके टेल एंड पे करते हैं, तो वो ज्यादा फोकस नहीं होती। तो ये कॉमनली ये हमारे यहाँ है जिसको इस सेमिनार से फायदा होना चाहिए। सर शायद सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर हाउ कैन स्टूडेंट्स अवॉइड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वेस्टिंग ऑन मोबाइल एंड सोशल मीडिया? सोशल मीडिया को कैसे निकालें जिंदगी से? इसमें देखना जी, जब ये इस वर्कशॉप की बात हुई तो मैंने भी कहीं से, जो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा मैं अपने आप को भी तो एजुकेट कर लूं, तो मैंने इस्तेमाल तो सोशल मीडिया ही किया कि कहाँ चाइना में लोग कैसे करते हैं, वियतनाम में कैसे करते हैं, यूएस में लोग अपना टाइम कैसे गुजारते हैं और अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं, और बाद जगहों पे, बाद यूनिवर्सिटीज वगैरह में उनके पूरे प्रोग्राम्स हैं। अब ये सारी चीजें मैंने सोशल मीडिया पे ढूंढी, कुछ जाहिर है फोन के थ्रू, कुछ मैं एआई में, जेमिनाई में गया और चैट जीपीटी में गया, और ये, और अगर सोशल मीडिया की अच्छी बात यह है कि अगर आप इस किस्म की चीजें ढूंढना शुरू करें, अगर 2 चीजों को ढूंढेंगे तो अगले दिन आपके पास 4 और आ जाएंगी। सो द सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना एक इन्वेस्टमेंट है। रफीक साहब, सर आपकी तरफ एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। हाउ कैन पेरेंट्स सपोर्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन देम? देखिए मिक्स है बेशक, बहुत चीजें चेंज हो गई, बट स्टिल पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि अननेसेसरी तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए बच्चे और साथ काम भी हो जाए? देखिए पेरेंट्स तो वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ उन्हें गुजारने का मौका मिलता है, खासकर समर वेकेशन में। तो अगर वो हेल्पफुल नहीं होंगे तो बच्चे जितनी भी प्लानिंग करेंगे वो फेल हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि पेरेंट्स कुछ अपने मामलात में भी तब्दीली लेके आएंगे जी। जब वो समर वेकेशन है
अगर पेरेंट्स ने पहले इस घर के मामूल में रखा हुआ है कि हमने रात 11 बजे सोना है और सुबह सवेरे हमने नहीं उठना और 10 बजे उठना है, तो और नाश्ता 11 बजे होगा और उसी को ब्रंच का नाम दे के आगे, तो ये इससे बचा कभी भी नहीं। अब अगर आपके घर में फादर या मदर वो प्लान कर लें कि इस समर वेकेशन में, क्योंकि बच्चों ने हमारे साथ होना है, तो हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है। और ये मैं बाहर की मिसाल नहीं दे रहा, मैं अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी बेगम या मैं खुद, हमने एक टाइम सेट किया हुआ है कि हमने सुबह इतने बजे उठना है, और हमारे सारे बच्चे उठते हैं, हाँ वो शादीशुदा भी हैं, इंजीनियर हैं, उनकी बेगमात। सो इट इज द पेरेंट्स के वो उनको कहेंगे बेटा नो दिस इज द, हमारे घर की एक ट्रेडिशन है, इसे आपने फॉलो करना है, और अर्ली हम राइज करेंगे और सोने के लिए भी हम अर्ली जाएंगे। और रात को कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत सारी पेरेंट्स की वजह से हो रही होती है, कोई घर में पार्टी है, कोई विजिटर्स हैं, तो उन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को वो एनवायरनमेंट और वो फैसिलिटेशन मुहैया करें कि जिससे बच्चों को उन सारी चीज़ों से दूर आना पड़े जो कि उनके सारे प्लान के अंदर को हडल पैदा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं आप तीनों स्पीकर से पूछना चाहूंगा। रफीक साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं कि एक स्टूडेंट है, एक यूथ है, वो वेकेशन आ रही है, वो क्या जब वो प्लान बनाता है तो एक क्या गोल रखे कि ये मैंने अचीव करना है? जैसे एक आता है कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, बेटर, तो क्या उसका गोल होना चाहिए? जस्ट अ लर्नर प्लीज, कि वो क्या गोल रखे और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाए। मेरा ख्याल सिंपल, एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि वो बच्चा जिसने समर वेकेशन से एक हफ्ता पहले अपने स्टडी रूम या जहाँ भी बैठ के पढ़ता है, वहाँ 1 घंटे के लिए बैठे और अपने आप को असेस करे कि ये 9 चीज़ें हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी स्किल्स में मेरी ये कम्युनिकेशन स्किल है, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल ये है, मैं क्वेश्चन करता हूँ या नहीं करता। फिर इसी तरीके से वो देखे कि अब सोचे वो कि यार मेरा करियर क्या है, मैं उसकी मेरी क्या है, मैंने कम्युनिटी सर्विसेज क्या मैं करता हूँ अब तक। तो जो 7-8 चीज़ें के जहन में आए तो एक कॉलम में लिस्ट कर ले, ये यहाँ मैं हूँ, और उसको कोई भी ग्रेडिंग कर ले कि मैं इस वक्त 10% पे हूँ, इसमें 20 पे हूँ, 50 पे हूँ, 70 पे हूँ, या मैं गुड हूँ या एवरेज हूँ या एक्सीलेंट हूँ, ये करे। और फिर उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं उनको अपने समर वेकेशन के प्लान में डाले, और उसके लिए जो जो एक्टिविटी अभी मैंने भी जिक्र किया और बाकी ने भी उन एक्टिविटी में जा करे, और एंड ऑफ द डे देखे कि यस, और जब छुट्टियां खत्म होने से पहले फिर एक सेकंड अपना टेस्ट ले और देखे यस दिस इज द, मैं यहाँ था और आई हैव ट्रैवल टू दिस डेस्टिनेशन, अब पहले से बेहतरी आई है। इस तरह की एक बहुत मैकेनिकल नहीं बट वेरी कैजुअल, जो कि एक अपने आप को असेस करने में 15 मिनट लगते हैं कि मैं फलां फलां, लेकिन पहले लिस्ट कर ले, जिस तरह भी हमने हमारे सारे पैनलिस्ट ने बहुत सी बातें की कि ये चीजें होनी चाहिए समर में, इन एक्टिविटीज को देख के, लेकिन उनका प्री टेस्ट जरूर करे कि पहले देखे कि ये मैं इन चीजों में कहाँ हूँ, और फिर गर्मियों की छुट्टियों में या समर वेकेशन में उन पे जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे, और एट द एंड ऑफ द समर वेकेशन वो देखे कि यस इन सारी चीजों में पहले से बेहतरी आई है। रिटर्निंग बेटर एंड नॉट जस्ट रेस्टेड, उसमें मेरा जो फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में आता है, मैंने बताया 3 चीजें हैं, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड हैविंग फन। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 30-30-40 पे या 30-40-30 पे। जो प्लान बनाए इन तीनों चीजों में बनाए, मैंने तीनों चीजें करनी, लर्निंग भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, एंड फन और रेस्ट, whichever way you call it। और फिर उसके अंदर देखिए आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। So make a framework of what you want to do, give weightage and see how you are getting it done। बहुत शुक्रिया। अर्शद भाई, आपकी तरफ आता हूँ, क्लोजिंग लाइन भी दीजिए और इस क्वेश्चन के जवाब भी दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि समर शुरू हो चुका है, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। 1, एक स्किल डेवलप करनी है इस छुट्टियों के अंदर, कंसिडरिंग योर सब्जेक्ट, और अगर नहीं समझ में आ रही तो कम्युनिकेशन या IT की एक चीज। नंबर 2, एक हैबिट, उसको आपने बेहतर करना है, वो लेट सोने की हो, वो लेट उठने की हो, खाने पीने की हो, एक से। तीसरा काम, आपको कुछ कमाने की तरफ जाना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बने, खा वो बहुत थोड़ा, बट यू मस्ट स्टार्ट दैट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच रफीक साहब, फैज साहब, अर्शद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऑडियंस, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे यकीन है कि आप लोग अपना समर प्लान बेहतर बनाएंगे इसके साथ। और याद रखिएगा, बात स्ट्रेस लेने की नहीं हो रही, बात मीनिंगफुल की है। कंपटीशन का दौर है, चीजें हैं, और बिलीव करें आज के दौर में नहीं, जब हम हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, हम भी उसको कोशिश किया करते थे कि मीनिंगफुल लाइफ गुजारें, कम से कम करें, और उसका फायदा होता था। मैं आज से 91 की बात बताऊं, 91 में मैंने 3rd ईयर में था, बीकॉम कर रहा था, तो मैंने गर्मियों की छुट्टियों में एक सीए फर्म ज्वाइन कर ली थी, और बिलीव करें उसका मुझे बहुत फायदा हुआ था। तो कोशिश करें कि चीजें, अब कंपटीशन ज्यादा है, चीजें मुश्किल है, बट उसके साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बिलीव करें, हम हमेशा कहते हैं लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन पे इसलिए नहीं जाए कि लोगों के प्रोफाइल देखें, खाली देखें, सीखें, इंस्पायर हो, और फ्री कोर्सेज अवेल करें। बेतहाशा चीजें हैं जो आपको देखें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। फॉरगेट अबाउट दी सर्टिफिकेशन, अगर उसमें पैसे देने पड़ रहे हैं, सीखने के पैसे कोई नहीं ले रहा आपसे, उसको यूज करें। आप जब मार्केट में उतरेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वो जो एक्सपीरियंसेस आपने छोटे छोटे कोर्सेज कुछ काम करके किए होंगे, ये सारे आपके सीवी में एडिशन होंगे और आपको एक वैल्यू एडिशन देंगे। आपका सीवी हाई रेट होगा एक ऐसे सीवी के साथ जिनके पास कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के साथ हम आज के वेबिनार का इख्तिताम करते हैं। आप तीनों स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले महीने वेबिनार नंबर 58 के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।